रब्बुहुम बिदम, तो दमदमा युदमदिमु दमदमतन, ये तो इस तरीके से कुरान करीम में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं रुबाई के। और भी बहुत सारी जगहों पे रुबाई के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। एक दो मिसालें मैं इसी तरीके से आप हजरात के सामने पेश किया। फ़अलला युज़लज़िलु युफ़अलिलु ज़लज़लतुन फ़अललतुन, ठीक है। तो बाबे फ़अललत बोलते हैं इसको, या बाबे फ़अलला जो बोलना है बोल सकते। तो ये रुबाई मुजर्रद का बाब है, और सिर्फ 4 हरूफ असली हो, एक भी हरूफ जायद ना हो, इसका सिर्फ ये एक ही बाब आता है, इसके अलावा दूसरे बाब नहीं आते। उसके बाद रुबाई मजीद थी जिसमें कुछ हरूफ का इजाफा किया गया हो, उसके 3 अबवाब मुस्तमल हैं, इस्तेमाल में आते हैं, ठीक है। तो अब ये दमदमा के हरकत लगा दीजिए सब। ठीक है, दमदमा युदमदिमु दमदमतुम। और एक और चीज भी है कि अगर कहीं हरकत मिस हो गए तो आप एस्टीज उसको फ़अलला के वजन पे जो है हरकत लगा लीजिए, कोई मसला नहीं है। बाब जो बताए जा रहे हैं, बाब बतलाने का मकसद ही हरकत आइडेंटिफाई करना है। बाब नसारा से अगर कोई लफ्ज बोल दिए हम, तो नसारा मिसाल के तौर पे खतला जो है नसारा से है, खतला बाब नसारा से, इसका मतलब ये है कि नसारा यंसुरु यानी फेले माजी फेले मुजारे जिस वजन पे आते हैं, खतला के भी फेले माजी फेले मुजारे उसी वजन पे आते हैं, ये मतलब होता। तो हम खतला को भी हरकत अगर नहीं लगाए तो नसारा यंसुरु के वजन पे खतला यक़तुलु हम खुद आइडेंटिफाई करेंगे और हरकत लगा देंगे उसी बाब से। किसी बाब के सिलसिले में मैं बोल दिए कि बाब इफ़ाल से है, किसी भी लफ्ज के सिलसिले में, तो बाब इफ़ाल से का मतलब यह है कि अफ़अला युफ़इलु इफ़आलुन, तो अकरमा युकरिमु इकरामुन, अखरजा युखरिजु इखराजुन। बस एस्टीज हरकत लगाना है, तो वो हरकत एस्टीज लगाने का नाम ही बाब है। तो ठीक है, समझ में आ गया ना? इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं रुबाई मजीद फी के अब्वाब की तरफ। बैठ दूं? जी उसके बाद रुबाई मजीद फी के 3 अब्वाब हैं। नंबर 1 है तफ़ाअलुल, बाबे तफ़ाअलुल। इसकी जो तफसीलात हैं वो देखिए। तफ़ा फेले माजी तफ़ाअलला, यतफ़ाअलु,
جی اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا مثال کے طور پہ تدحرج، تدحرج، یتدحرج، تدحرج، تدحرج، ٹھیک ہے. دوسرا جو باب ہے وہ باب افعلال، افعلال، باب افعلال، ٹھیک ہے. اس کی جو فعل ماضی ہے افعلل یہ آتا، افعلل، یفعلل، یفعلل، افعلال، جی. اس کی مثال ہے احرنجام، یحرنجم، احرنجام، اس کی بھی اسکرین شاٹ لے لیجئے، میں اس کے معنی لکھاؤں گا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. جی لے لیں. تدحرج کے معنی لکھ لیجئے لڑکنا، تدحرج کے معنی ٹھیک ہے. اور احرنجامہ کے معنی لکھ لیجئے جمع ہونا، تدحرج کے معنی لڑکنا، کے معنی جمع ہونا. جی بہت سارے الفاظ اس سے عربی میں استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک اور باب ہے بس لاسٹ ابواب سے متعلق، اس کے بعد آگے گفتگو نہیں ہوئیں گی ابواب کی انشاءاللہ. تیسرا باب ہے باب افعلال.
باب افعلال، اس کا جو فعل ماضی مضارع استعمال ہوتا وہ افعلل، سوری افعل، جی اس کا جو فعل ماضی استعمال ہوتا افعلال، اقشعر، يقشعر، اقشعرار، يقشعر، اقشعرار، افعلال، چلیے رائٹ برابر. افعلل، یہ لفظ استعمال ہوتا اقشعر، افعلل، یفعلل، تھوڑا سا یہ ٹف ہے. افعلال، جی قرآن کریم میں یہ باب استعمال ہوا ہے 24ویں پارے کے آخری رکوع میں استعمال ہوا. اقشعر، افعلل، اقشعر، یفعلل، یقشعر، افعلال، اقشعرار. اقشعر کے معنی ہے رونگٹے کھڑے ہونا. اقشعر، یقشعر، اقشعرار، ٹھیک ہے، رونگٹے کھڑا ہونا، رونگٹے کھڑے ہونا. ٹھیک ہے جی. یہ 3 ابواب رباعی مزید فی کے استعمال ہوتے ہیں. بس یہاں تک ابواب کی پہچان ہو گئی. ابواب کی پہچان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ پہ حرکت غلط نہیں لگتی، صحیح حرکت ہم لگا سکتے ہیں. کسی بھی لفظ کو صحیح طریقے سے ہم پہچان سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ کون سا فعل ہے، ماضی ہے، مضارع ہے یا امر ہے، نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کے ذریعے سے ہم اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اس کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، ابواب کے ذریعے سے. ابواب کا یہ فائدہ ہے. اور بھی بہت ساری بحثیں ہیں کس باب سے کیا خاصیت اور کیا معنی پیدا ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے ہم جو ہے چھوڑ دیں گے. اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اگلے اور بھی اگر مزید دلچسپی ہو اور مزید خاصیتیں اور الفاظ کی بناوٹ جاننا اگر چاہیں تو اس وقت ہم جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. ضروری تو ہے، پڑھنا تو ہے، پڑھنا چاہیے، تبھی جا کے جو ہے ہم قرآن کریم کی ادبی چاشنی کیا ہے، ادبی بلاغت کیا ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال بنیادی طور پہ جن چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے، ایک حد تک ہم جو ہے قرآن سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہ بنیادی قواعد آپ حضرات کے سامنے آ گئے.
सरसरी तौर पर अगर मैं आप हजरात के सामने पूरे असबाक के आज तक के, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज तक के असबाक का खुलासा पेश कर दूं तो मेट दूं इसको जी। सबसे पहले हम लोग इस्तिलाहात पढ़े थे, तारीफात, हरकत किसे कहते हैं, और फिर तनवीन किसे कहते हैं, रफा नसब जर किसे कहते हैं, वाहिद मुसन्ना जमा, ये सारी की सारी चीजें हम फर्स्ट लेसन में इस्तिलाहात में पढ़ लिए। तो हरकत जबर जेर पेश को कहते हैं, और फिर उसके बाद जबर का नाम अलग है, दो तरीके से जबर का नाम लिया गया इससे पहले, फतहा नसब और जेर कसरा जर, पेश रफा नसब, सॉरी रफा दम्मा, और जिस पे ये हरकतें हों उनके भी नाम अलग से बताए गए हैं। और इसी तरीके से सुकून, साकिन और तनवीन, तशदीद, वाहिद, मुसन्ना जमा, गायब, हाजिर, मुतकल्लिम, फाइल, मफूल, मुस्बत, मनफी, मारूफ, मजहूल, माजी हाल, मुस्तकबिल, लाजिम और मुताद्दी, ये सारी की सारी चीज़ों पे गुफ्तगू की गई है। तो फर्स्ट लेसन के नोट्स अगर हम निकालें तो ये सारी की सारी गुफ्तगू हुई है। इसमें अगर कुछ पूछना है तो आप लोग बाद में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो सबक बतलाया गया है वो है कलिमा और उसकी किस्में। 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म, फेल, हर्फ, ठीक है। फिर उसके बाद इस्म की कई किस्में हम लोग पढ़े। तो नंबर 1 मारिफा नकिरा पढ़े, और मुज़क्कर मुअन्नस पढ़े। फिर उसके बाद वाहिद मुसन्ना जमा पढ़े हम लोग। मारिफा नकिरा नंबर 1। नंबर 2 मुज़क्कर मुअन्नस। नंबर 3 वाहिद मुसन्ना जमा। नंबर 4 मरफू मंसूब मजरूर, ये पढ़े। जी। उसके बाद जो है हम फेल की किस्में पढ़े। फेल में भी जो है नंबर 1 फेल माजी, नंबर 2 फेल मुजारे, नंबर 3 फेल अम्र, नंबर 4 फेल नहीं, ये पढ़े, ठीक है। हर्फ के सिलसिले में सिर्फ इतना बता दिए कि वो इस्म और फेल से मिलकर ही अपना माना बतलाता है, उससे हटके दूसरा खुद का उसका अपना माना मिले, ये चीज हमारे सामने आ गई। उसके बाद फिर मुरक्कब की बात आई थी। मुरक्कब के सिलसिले में ये बात आई कि मुरक्कब की 2 किस्में हैं, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। फिर नाकिस की 2 किस्में हम पढ़े, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी।
پھر مرکب تام کی بھی 2 قسمیں پڑھے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ اضافی کا مطلب یہ ہے کہ جس میں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہو، اور اس کے بھی 2 پارٹس ہیں۔ اس کے بھی دو اجزاء بنتے ہیں۔ نمبر 1 مضاف، نمبر 2 مضاف الیہ۔ تفصیل سے ہم اس کو پڑھ لیے۔ اس کے بعد جو ہے مرکب ناقص کی دوسری قسم ہم یہ پڑھے، مرکب توصیفی۔ اس کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں، موصوف اور نمبر 2 صفت۔ پھر اس کے بعد جملہ اسمیہ کے سلسلے میں بھی ہم لوگ پڑھے تھے کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہو۔ اس کے بھی 2 پارٹس بالعموم ہم پڑھے ہیں۔ نمبر 1 مبتدا، نمبر 2 خبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جملہ فعلیہ بھی ہم پڑھے، جملہ فعلیہ۔ اس کے بنانے کی جو ترکیب ہے، پہلے فعل، پھر فاعل، اور اگر مفعول بھی کی ضرورت پڑی تو مفعول، اس طریقے سے بنتا ہے۔ اور پھر اوپر نیچے بھی ہوتے ہیں۔ فعل پہلے جو ہے کیا بولتے ہیں، مفعول بھی آ سکتا ہے، اور فاعل بعد میں آ سکتا ہے، مفعول فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے۔ اس طریقے سے ہم اس کی تفصیلات پڑھے، فعل پلس فاعل پلس مفعول بھی، فعل پلس مفعول پلس فاعل، مفعول پلس فعل پلس فاعل، یہ ساری کی ساری تفصیلات ہم پڑھے۔ اس کے بعد اس کی بھی اسکرین شاٹ لے لیجیے۔ میڈ دوں؟ جی اس کے بعد ہم افعال کی قسمیں بھی پڑھے۔ افعال کی قسموں کی پوری تفصیلات ہم جو ہے اس طریقے سے پڑھے کہ پہلے فعل ماضی پڑھے، فعل ماضی پڑھے، پھر فعل ماضی کی ساری تفصیلات پڑھے ہم کہ معروف، مجہول، بنیادی طور پہ فعالہ کی صورت گری کو پڑھے کہ فعالہ، فعیلہ اور فعولہ، یہ 3 وزن استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے فعل ماضی مثبت سے منفی بنانے کے لیے ما کا اضافہ ہوتا ہے، ما فعلہ، ٹھیک ہے۔ پھر مجہول بنانے کے لیے فعلہ، فعیلہ، فعولہ کو فعیلہ میں بدلتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے فعل مضارع کے سلسلے میں ہم پڑھے، مضارع کا بھی یہی ہے، یفعلو
यफ़इलु यफ़उलु, और इसको काम नहीं हुआ बताने के लिए ला बढ़ा देंगे हम, ला यफ़अलु, ठीक है। और फिर इसका मजहूल बनाने के लिए युफ़अलु का वजन इस्तेमाल करेंगे तीनों के लिए, युफ़अलु। ये फ़िल मुज़ारे का स्ट्रक्चर आ गया, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिट दूं? जी बिल्कुल। उसके बाद फिर फ़िल अमर आ गया, हुक्म देना, और इसके बनाने का तरीका भी हम बता दिए कि अलामत मुजारे को हम गिरा देंगे तफ़अलु से बनेगा, तो इफ़अल होगा। आइन की हरकत के हिसाब से हमजा को हरकत मिलेगी, तफ़अलु तफ़इलु अगर है तो इफ़अल, और अगर तफ़उलु अगर है तो उफ़उल। और इस तरीके से हम लोग पढ़े फ़िल नहीं के सिलसिले में, ये भी फ़िल मुज़ारे से बनता है, ला तफ़अलु, ला तफ़अलु, ला तफ़अल, बस आखिर को जज़म लगा देंगे, खत्म, फ़िल नहीं होगा। इस तरीके से हम अफ़आल की पूरी बहस पढ़े, फ़िल माज़ी किस तरीके से होता है, उसकी कितनी शक्लें होती हैं, फ़िल मुज़ारे किस तरीके से होता है, उसकी कितनी शक्लें होती हैं, मुस्बत, मनफी, मारूफ, मजहूल, ये सारे के सारे तफसीलात हम पढ़ लिए। उसके बाद कुछ इस्म की बहसें भी आई, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस्म की भी जी बहसें ले आई, लिया। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल वगैरह। इसमें फ़ाइल 3 हर्फ से इस्तेमाल होने वाले 3 हर्फी फ़िल माज़ी के लिए इसमें फ़ाइल फ़ाइलुन के वज़न पे आता है, और इसकी भी हम पूरी तफसीलात पढ़ ली है। और इसमें मफ़ूल मफ़ऊलुन के वज़न पे इस्तेमाल होता है, ये भी हम पढ़ लिए। मसजूद मलाइका कहते हैं हज़रत आदम को, आदम ज़ात को मसजूद, जिसके सामने सजदा करवाया गया, किया गया। साजिद, जाकिर, आबिद, नासिर, ये पूरे के पूरे इसमें फ़ाइल है। मसजूद, माबूद, मज़कूर, मक़तूल, मंसूर, ये पूरे के पूरे इसमें मफ़ऊल है। उसके बाद फिर अब आपके, और ये तो रिसेंट हम पढ़े, इसलिए इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। ये अब तक जितना पढ़े उसका एक हिसाब से हल्का सा खुलासा है। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग एक एक दो दो रुकू करते हुए हम तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे। कुछ अल्फाज माने मैं देता रहूंगा, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, इंशाल्लाह मशक करते हुए। अफ़ाल अगर आ रहे हैं तो अफ़ाल की गर्दान, अफ़ाल को पहचानते हुए, है, मुजारे है, अमर है, नहीं है, इन चीजों को पहचानते हुए एग्जैक्ट हम माने करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप हजरात से मेरी गुजारिश ये है कि आप जो है तफहीम रखिए, पूरे रुकू का खुलासा पढ़िए। आप तफहीम में
वर्ड टू वर्ड माने के बजाय पूरी आयत का खुलासा, पूरी आयत को अपने अंदाज में तर्जुमा किया गया है। तो आप पहले पूरी आयत का अपने अंदाज में तर्जुमा पढ़िए, तर्जुमानुल कुरान के जरिए से या तफहीम के जरिए से, फिर उसके वर्ड मीनिंग की तरफ आइए। तो लफ्ज बलफ्ज माने किस तरीके से हुआ, और फिर पूरा लफ्ज बलफ्ज माने को हम समझने के बाद पूरा खुलासा इसका क्या है, किस तरीके से कहा जा रहा है, वो अगर हम पढ़े, दो चीजों को भी सामने रखे, तो इंशाल्लाह बात मजीद खुल के आएंगी। और क्या है वो, बहुत सारे तराजिम है हमारे पास, लफ्ज बलफ्ज तर्जुमा भी मार्केट में मौजूद है, दस्तयाब है नज़ीर साहब का। और फिर उसके बाद जो है पुराने मौलाना मुफ्ती अशरफ अली थानवी साहब, मुफ्ती शफी साहब, और फिर उसके बाद और भी इस तरीके से अगर कदीम तर्जुमे हम देखें तो एज इट इज लफ्ज के माने नीचे लिखे हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, तो ये किताब नहीं है शक इसमें, इस तरीके से। और ये किताब ऐसी है जिसमें किसी किस्म का शक नहीं है, ये मौजूदा हमारे अपने अदबी एतबार से है। बहरहाल जिसके पास जो तर्जुमा कुरान मौजूद है उसी से देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इंशाल्लाह। तो कल से हम लोग तर्जुमा कुरान की तरफ चलते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह। कल अल्फाज मैंने डालूंगा सोचा था, फिर मसरूफियत की वजह से मैं नहीं डाल सका कल, माजरत खा हूँ। तो आज इंशाल्लाह मैं डाल दूंगा सूरह, इससे पहले भी डाला था मैं सूरह फातिहा का और